So last lecture I gave you a sheet. सबने अटेम्प्ट कर लिया है बेटा उसको? Yes, sir. Yes, we did inside the class only. Sir, the IUPAC nomenclature, right? Yes, beta. Yes, sir. We have done it in class only. I think. You have completed that. Did we discuss? No, sir, we didn't discuss. We haven't discussed, but since you had left the class because of internet issues, हाँ, चलो. I was asking if you have done the assignment. Okay. Before you told us to leave the class. चलिए. So first question जैसे मैं देखता हूँ ना. Should I discuss each and every question, or you are asking questions doubt wise? Each and every question will be fine. Okay. चलो. Which of the following hydrocarbons give only 1 degree alkyl group? अब आप ध्यान से देखो बेटा. For example, if I choose option A, because how do we get alkyl? You just remove H from alkane, you will get alkyl. This is alkyl. They have given you like option A, CH3, CH3. What you do? You just remove H, you get CH3, CH2. You remove this hydrogen or you remove this hydrogen, you are going to get only one alkyl, that is ethyl. Am I correct to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Am I correct? अब आप देखो, if I write, अच्छा इसको check करो. This carbon is connected with how many other carbon atoms pair in this ethyl group? Connected with how many? No, only one, na, this side. This is unsatisfied valency. Only one. That is why this is 1 degree alkyl. Right now? Similarly, check B option. In B option, it is methane. So when you remove H, you get methyl. Tell me, in methyl, carbon is connected with how many other carbon atoms? 0. Zero. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? 0 degree. 0 degree. Clear ना? C option देखो. CH3, 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 H. First of all, how many different types of H present? One is this type. You will not select this one. You will not select this one because this methyl, or this methyl. All 3 methyl groups are identical. You can select this one. It is different. So one alkyl group will be this CH3, CH3, H, CH2. This is one type of alkyl. Another type of alkyl will be CH3, 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 H. Writing थोड़ी सी मैनेज कर लो आप. बाकी आप कॉन्सेप्चुअल कोई डाउट हो तो बोलते रहना. यहाँ से छटा दिया बेटा मैंने ये. So only 2 types of alkyl groups present. और 2 टाइप में आप देखिए 1 डिग्री कौन सा है? ये वाला. राइट? ये वाला कौन सा डिग्री वाला हो गया बेटा alkyl? 3 डिग्री. Because carbon is connected with 3 other carbon atoms. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बेटा? सर सेम होगा तो उसको कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? लाइक हटा क्रॉस क्यों मारा आपने? सेम ही मिलेगा ना. मतलब अगर 2 बार तुम इथाइल लिख दोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना. अगर कोई पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, विल से ओनली वन इथाइल. ऐसा अब उसको 2 बार 10 बार 15 बार लिख दोगे तो 15 थोड़ी ना हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ सर मैं सी के 2 लिखे तो उसमें तो दोनों 3 डिग्री है ना. एक कार्बन एटम 3 डिग्री होगा ना उसमें, एक में तो नहीं बेटा. ये वाले इसमें देखोगे ना, ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद ओनली दिस वन. ऐसा ऊपर की तरफ डंडा देखो, एक ही कार्बन दिख रहा है ना सामने. हाँ, उसका बीच वाला का 3 होगा ना. बीच वाले का तो 3 डिग्री लिख चुका ना मैं इधर. अरे लिखा है ना. एक मिथाइल ग्रुप हटा देंगे ना. मिथाइल ग्रुप कभी नहीं हटता. एल्काइल ग्रुप लिखने के लिए H हटाते हैं. समझ में आई मेरी बात? सब लोग ये चीज हाईलाइट कर लो बेटा. Sir, so which one is the answer? अभी आते हैं ना. आप लोग ठीक से बता नहीं रहे हो. इट्स क्लियर और नॉट क्लियर. कुछ आप मेरे को गाइड करो तो मैं अकॉर्डिंगली आगे बढ़ूं फटाफट. हाँ, तो आप जो लोग जिनको समझ में आ रहा है वो डोमिनेट करें बेटा, है ना. तो सर पता चला कोई क्लास में 1-2 बच्चे हैं जिनको कम समझ में आया और वो डोमिनेट करने लगे तो फिर क्लास बहुत धीमी हो जाती है. जैसे आप इसको देखो, आप इसमें देखोगे, कोई बता सकता है कितने डिफरेंट टाइप्स के H हैं यहाँ पर? सारे एक टाइप के हैं या 2 टाइप के हैं या 3 टाइप के हैं? एनीवन? Only one type. So one type is CH3. Yes. ये There are 2 types of carbon, only 1 type of H. उससे 2 टाइप के कार्बन से मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए H निकालना है. तो यानी एक ही टाइप का एल्काइल आपको मिलेगा हर बार.
दैट विल बी CH3 होल थ्राइस C, और यहाँ पर आएगा CH2 डैश। समझ गए? अब आप ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है यही तो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी वाला है। दिस इज कनेक्टेड विद हाउ मेनी अदर कार्बन एटम्स? ओनली वन ना, सामने डायरेक्टली दिख रहा है, ओनली वन। दैट मींस दिस आल्सो 1 डिग्री। ऐसे में कंफ्यूजन होते हैं बेटा कई बार कि आपको यहाँ 3 दिख रहा है बट ये तीनों इसके साथ नहीं कनेक्टेड है, इसके साथ तो एक ही कनेक्टेड है, दैट इज 1 डिग्री। क्लियर है? तो क्या क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसमें? ए एंड डी। ए एंड डी, डन, हो गया। बी वाले में आपको 0 डिग्री मिलता है इसलिए आंसर नहीं, और सी वाले में आपको 1 डिग्री के साथ साथ 3 डिग्री भी मिल रहा है, दैट इज व्हाई दैट क्वेश्चन इज नॉट द आंसर, दैट ऑप्शन इज नॉट द आंसर। तो सी वाले कंपाउंड में वो सेंट्रल कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। बेटा वो तुमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं आता इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से जिस कार्बन की वैलेंसी आपको चेक करनी है उस पे कार्बन बना दो जिस पॉइंट पे, और उसकी तीनों वैलेंसी यहाँ दिख रही है, उसके अलावा H होता है। H लिखे नहीं जाते, कार्बन लिखे नहीं जाते, उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, ओके सर। तो ये हम कॉप- H हटा सकते हैं या फिर CH2 कर सकते हैं? फिर कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हो। आप एल्काइल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, बॉन्ड लाइन आपको समझ में नहीं आता, नहीं, वो आप अल्काइल बोल रहे हो। अल्काइल अल्काइल हाँ का तो पूछ- मिक्सड अप नहीं करना है ना। तो एल्काइल बनाने के लिए H हटाना होता है, बस ये आंसर है उसका, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है? Sir, can you please explain again why D is answer? डी में बेटा ऑल मिथाइल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल टाइप ना, तो आप किसी मिथाइल से एक H हटा दोगे आपको हर बार एक ही टाइप का कंपाउंड मिलेगा, और दैट इज 1 डिग्री। ठीक है? ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इन तीन को मत देखो बेटा, ये दूसरे, ये नेबर का फैमिली है, तो उधर नहीं जाना है। हमारे लिए केवल ये C जो है कनेक्टेड है इसके साथ। सेकंड क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम ऑफ नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन आपको सबसे पहले तो ड्रॉ करना आना चाहिए। तो नियोहेक्सेन के लिए 4 कार्बन स्ट्रेट बनाएंगे, टोटल 6 होते हैं, और 2 जो बच गए उनको कहाँ दे देंगे बेटा? ब्रांच। सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 नेम विल बी व्हाट? 2,2 डाइमिथाइल Butane. ब्यूटेन। बस लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं ही दिखा देता हूँ। कहता आइसो ऑक्टेन, कैन यू रिकॉल? मैंने आइसो ऑक्टेन आपको कहीं तो बताया है। Yes, sir. Fuel. वो पेट्रोलियम का मिक्सचर। हाँ बिल्कुल सही। तो वो एक स्पेशल कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड है, उसका IUPAC नेम फिक्स्ड है। Sir, वो आइसोनियो वाले रूल से नहीं आता, याद रखना। हमने ये चीज क्लियरली लिखा है, वो आइसोनियो रूल से नहीं आता, वो ट्रेडिशनल कंपाउंड है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2,2,4 1 2 3 4 5 ट्राई मिथाइल, आगे क्या लिख दें? Sir, pentane. यस एब्सोल्युटली। सर एक क्वेश्चन छूट गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? IUPAC name of neopentane. दिस इज फोर्थ वन, परहैप्स, Oh. सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नियोपेंटेन बोला है ना, CH3 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 CH3। इज इट क्लियर? 5 कार्बन हो गए इसके। तो क्या हो जाएगा ये बेटा? 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल Propane. प्रोपेन। हो गया। डन बेटा, हटा दें इसको। Yes, sir. अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स हैव ओनली 2 डिग्री कार्बन। इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को बेटा? A will have only 2 degree, B will have only 2 degree, C will have only 2 degree। A, B and C फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? Sir, A, B and C. If any सर confusion you ask, डी में 3 2 डिग्री हो गए और 3 डिग्री हो गए ना सर कार्बन और एटम। 1 डिग्री भी तो है, ध्यान से देखो। और सर 1 डिग्री भी। सर सी वाला एक बार बताओ ना, कौन सा बेटा? सी वाला कैसे 2 डिग्री वो बताओ ना एक बार। बेटा इससे कोई मतलब ही नहीं है कि वो डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड, खाली इतना देखना कार्बन कनेक्टेड विद इधर कार्बन कार्बन, दैट इज वाई 2 डिग्री। ओके सर। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव 2 डिग्री एज वेल एज 3 डिग्री। ये भी हो जाएगा सबसे। आगे बढ़े बेटा।
आसान है, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, एनीवन? No, sir. Continue. Now question number 7 you see, which of the following is are non-benzenoid aromatic compound? तो नॉन ये इसके लिए इसको यू लीव दिस ना 7th पर। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये डिस्कशन हम लोग कभी बात करेंगे जब एरोमेटिसिटी पढ़ लेंगे। तो इसका आंसर लिख लो ए। हाँ, इसका आंसर ए लिख लो और लिख दो डिस्कशन विल बी लेटर ऑन आफ्टर एरोमेटिसिटी डिस्कशन। ठीक है, क्लियर बेटा? Yes, sir. फिर कहता है एलाइल आयोडाइड इज, देखो 2-3 ग्रुप्स होते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। एक को बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH जैसा लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड विनाइल। व्हाट डू वी से बेटा? विनाइल। देन एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलाइल, एलाइल। और एक होता है ग्रुप ऐसा, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो अगर कोई तुमसे पूछे विच कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। विच कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। किसी को बेटा कोई डाउट है जो मैंने अभी लिखा है ये? Sir, can you explain again? पूरे ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं, एलाइल ग्रुप बोलते हैं और बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। ये फिक्स्ड है, हाँ, कोई चेंज नहीं कर सकता। और किस कार्बन के नाम पे एलाइलिक बोला गया? इस कार्बन पे। किस कार्बन के नाम पे बेंजाइलिक बोला गया? इस कार्बन। ठीक है बेटा? Yes, sir. Got it. अब आप देखो क्वेश्चन में कहता है एलाइल आयोडाइड। एलाइल आयोडाइड अगर मेरे को लिखना है तो मैं एलाइल लिखूंगा पहले, फिर उसके बाद क्या लगा दूंगा उसमें, बताओ बेटा? I. बस। अब वो कह रहा है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो ये बताओ ये आई किस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, किस टाइप के कार्बन के साथ? प्राइमरी कार्बन के साथ, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन? सेकेंडरी। नहीं, ये कार्बन एक ही कार्बन। तुम लोग कैसे Primary. देख रहे हो, समझ Sir, में नहीं आ रहा। primary है ना for 1 degree. हाँ, तुम लोग इमोशनल हो रहे हो, तुम डंडे देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ कार्बन कितने से कनेक्टेड वो देखो, तुम डंडों को देख रहे हो। तो ये 1 डिग्री कार्बन, इसलिए होल एल्काइल विल बिकम व्हाट? प्राइमरी। होल एल्काइल आयोडाइड विल बिकम प्राइमरी एल्काइल आयोडाइड। एनी कंफ्यूजन बेटा? तो सर primary halide ना? हाँ, प्राइमरी हैलाइड। Okay. वो एक्चुअली आयोडाइड है तो उसको हैलाइड बोल लो या आयोडाइड बोल लो, कोई फर्क नहीं। तो मतलब halide मतलब सो group ना, मतलब? हाँ, हैलाइड का मतलब ये हो कि उसमें हेलोजन है, यानी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो जनरल में हैलाइड लिख गया है, Got it. ऊपर क्वेश्चन के मैंने ही टाइप किया है। तो समझा। लिखना मुझे हैलाइड आयोडाइड ही चाहिए था ऐसा। ठीक है? Yes, sir. सर जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं ना, वैसे ही प्राइमरी हैलाइड। नहीं, हाँ, मतलब बिल्कुल वैसे ही सोच सकते हो, बिल्कुल सही बात। अच्छा, ओके। सर बोलो ना। सर ये विनाइल और एलाई क्या आपने बोल सकते हो बस? विनाइल और एलाइल एक ग्रुप्स के नाम है, जैसे मिथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, ब्यूटाइल होता है, उसी तरह विनाइल एलाइल सेपरेट टाइप के ग्रुप है। ठीक है बेटा? सर ये ग्रुप्स हम किसके अंडर नोट करें, ये वाले? ये डिस्कशन, अंडर डिस्कशन। देखो ऐसे ऐसा तुम मानकर ना चलो कि ये बोर्ड एग्जाम जैसा है कि भाई हमको पहले थियरी सब एक जगह लिख लेनी, फिर प्रॉब्लम्स कर लिया और हमारा सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता है। यहाँ डिस्कशन बहुत सारा होता है, बहुत कंक्लूजन्स निकलते हैं। कई सारी चीजें होंगी जो थियरी में हमने डायरेक्टली नहीं लिखी होंगी, यहाँ पर हो सकता है कंक्लूजन्स में वो चीज निकल कर आ जाए। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये मानकर नहीं चलना है वो उस ओल्ड स्टाइल में कि टीचर आया, नोट्स दिए और वो नोट्स के क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको जेई जैसे एग्जाम अच्छे रैंक के साथ लाना है तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हमको बहुत सारा डिस्कशन करना है। ये कोई रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। मेरा पॉइंट सबको समझ में आया ना, कि ऐसा मानकर नहीं सच चलना है कि हमने कहीं पर कुछ थियरी लिख ली, अब उस थियरी के इधर उधर कुछ नहीं पूछेगा। तो वो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अरे, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं आपको बेंजाइल बता भी दिया या कहीं एलाइल बता भी दिया, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आया, तो एप्लीकेशन से जो कंक्लूजन आएगा वो दूसरी चीज हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? सोच, आंसर बता सकता है कोई तुरंत? कोई? प्राइमरी अल्कोहल। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, सब देखो कितने बेंजाइल अच्छे के से। एक हाँ, OH। बस अब केवल इस कार्बन को देखना। अब कोई पागल अगर ये सोचे कि ये कार्बन के बेसिस पे बोल दिया गलती से, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यहाँ पर आपको इस कार्बन पे फोकस करना है, वो कितनों से कनेक्टेड है? ओनली 1, दैट इज व्हाई इट इज 1 डिग्री आंसर। ठीक है?
फिर 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो A is homocyclic, B is heterocyclic, C is heterocyclic, D is homocyclic. Is it clear to everyone? At some Sir, point of Dr. time, I gave all the compounds. Sir, can you repeat this one, please? I said phenol is homocyclic, THF is heterocyclic, oxirane is heterocyclic, and aniline is homocyclic. Sir, इसके examples like we should remember a lot. मतलब मैं नहीं समझ पा रहा बेटा, आप पूछ क्या रहे हो? क्या आप स्ट्रक्चर जानना चाहते हो? नहीं सर, जब हमने टेबल ड्रॉ किया था उसके हमने लाइक 2-3 एग्जांपल लिखे थे ना इसमें। अच्छा हाँ, तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई एग्जाम्पल मिस हो गया हो तो आप उसको नोट कर लें। देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सारे एक साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये टाइम टू टाइम जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बार बार आएंगे, नए होंगे तो नए आप ऐड भी कर सकते हैं कहीं पर। कहाँ लिख रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ना तो आपको सारे नोट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिनॉल का स्ट्रक्चर सब लोग बना लो अगर किसी को नहीं आता है। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। फ्यूरान का स्ट्रक्चर बना लो, फ्यूरान ऐसा दिखता है बेटा। नहीं, हम लोग कहाँ THF है ना। नेक्स्ट वन इज THF, दिस इज THF, C is oxirane, this is oxirane, D is aniline, this is aniline. You all write these structures. Done, sir. Should I remove this? Hetero- Yes. Are you saying something? Sir, which compound is heterocyclic in this? You can check na, oxygen is there in between, that is why heterocyclic. रिंग में देखो बेटा, रिंग का पार्ट क्या कार्बन है या कुछ और एटम भी है, जस्ट चेक रिंग पार्ट। क्या समझ में आया? ईच एंड एवरी एटम ऑफ रिंग। somebody say, can you show me first page screenshot? हाँ ले सकते हो बेटा स्क्रीनशॉट, असाइनमेंट का डिस्कशन है ये, ले लो। इसका सर भी लेना चाहो ले लो, इसका भी ले लिया, इसका भी ले लो, इसका भी ले सर सकते। फिनॉल एंड इन सब का नाम लाइक कैसे हम डिसाइड करेंगे? ये कॉमन नेम है या कैसे? ये सब टाइम टू टाइम पे बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो अभी के लिए जो मैं लिख रहा हूँ बस उतना लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन वाज नॉट राइट IUPAC नेम और क्वेश्चन वाज नॉट राइट कॉमन नेम, क्वेश्चन वाज वेदर these are heterocyclic or homocyclic. Is it clear? यस सर। So can you repeat the answer of the eighth one? Eighth one answer is THF and oxirane, B and C. Question number 11. Heterocyclic as well as aromatic. If you see A, ये भी आप इसको कह दो लेटर ऑन, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप एरोमेटिसिटी नहीं जानते ना, तो इसको बता नहीं सकता मैं। Unless you are aware of aromaticity, it is not possible. इसको हटा दें बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो इंटीजर टाइप आपको आएगी नहीं आए बेटा? यस सर। सर थोड़े ऐड। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन 1 देखो इंटीजर टाइप में। क्वेश्चन 1 इंटीजर टाइप। क्वेश्चन में कहता है among the following the number of hydrocarbons which do not have 3 degree carbon is। तो अब इसमें तो तुमको देखो एक एक करके ऑप्शन सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जो पहला वाला है वो तो 3 डिग्री तो है ही नहीं, उसमें 2 डिग्री है ना,
तो पहला 2 डिग्री है, दूसरा वाला 2 डिग्री है, तीसरे वाले में 2 डिग्री है, चौथे वाले में, फोर्थ वन वाले में 1 डिग्री एंड 3 डिग्री है। जितने अभी मैंने लिखे उनमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। सर सेकंड वाले में 3 डिग्री है ना? सेकेंड वाले में 2 डिग्री है बेटा। कोई भी आप कार्बन चूज करो, उसके इस तरफ कार्बन, इस तरफ कार्बन। डबल बॉन्ड होने से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? यस सर। So, sir, only fourth or the last one have 3 degree carbons, right? Is it clear to everyone? Yes, सर sir. 7th वाले में 3 डिग्री नहीं आएगा क्या? Which one? First one? 7th वाला एक 4 डिग्री और फिर Seven. 1 डिग्री ना? नहीं, 4 डिग्री तो है ही नहीं बेटा, केवल 1 डिग्री है। 4 डिग्री कुछ होता ही नहीं। 4 डिग्री या कार्बन 3 डिग्री पूछा है ना? हाँ सॉरी, 4 डिग्री भी है। अच्छा, मुझे लगा हाइड्रोजन। ठीक है, 4 डिग्री भी कार्बन। वेरी गुड बेटा। Should I remove this? सर फोर्थ वाले का क्या था डिग्री? Just check ना। So sir the answer is 7 ना? वो आप चेक कर लो। ठीक। Question number 2. The number of alkyl groups which can be obtained using following alkane. Let me tell you one thing. When you write alkyl, you just remove H. Right? So if they give you this structure, the only thing you need to do is find different types of H. Find what? Different types of H, because H you have to remove to write alkyl group. Find different types of H. Clear है? जितने भी ये different types of H, same number will be of alkyl. Can be formed. Like this methyl and this methyl, if you see, both are identical. How? This methyl, इसका adjacent is CH, next is CH2. इसका भी देखो, adjacent is CH, next is CH2. इधर देखोगे CH, CH2. इधर से जाओ CH, CH. यानी कि this one, if you select for H, you will not select this one, you will not select this one, you will not select this one. क्या सबको समझ में आया बताइए? Sir, can you repeat? ये समझा नहीं। क्योंकि अब ज्यादा समझ मतलब डिफिकल्ट होगा तो मैं स्किप करा दूंगा अभी के लिए। अगर कुछ लोगों को समझ में आओ तो एटलीस्ट मुझे हिंट दो, है ना? अगर पूरी क्लास को समझ में नहीं आएगा तो वो चीज अभी स्किप कर सकते हैं, उस लेवल पे अभी हम नहीं पहुंचे। इसका मतलब कोई ऐसा बच्चा No, नहीं sir, didn't get it. नहीं सर नहीं समझा ना? सर कि आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं नहीं, और किसी ने भी नहीं बोला कि उसको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, उसको भी आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। ठीक है, जिसको मैंने समझाया, अगर यहाँ आपकी पूरी क्लास में एक भी बच्चा है वो जिसको समझ में आ गया है तो इसको जरूर कर लेगा, है ना? वो बाकी बच्चों से अहेड होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता है कि आप किसी से आगे हैं, उतनी चीज आपने भी पढ़ी है, उसने भी पढ़ी है, बट आप ज्यादा, आपकी ग्रास्पिंग पावर थी, आपने समझ लिया इस चीज। आप थर्ड अपने आप फिर सोचिएगा, है ना? और हो जाए तो आप ग्रुप में डाल भी दीजिएगा। फिर कहता है नेक्स्ट नंबर ऑफ 1 डिग्री एल्काइल। इसमें भी वही प्रॉब्लम है बेटा, हर जगह कॉन्सेप्ट एक ही यूज हो रहा है उसमें, क्योंकि जब भी एल्काइल, इफ यू वांट टू राइट एल्काइल ग्रुप फ्रॉम एनी कंपाउंड, यू हैव टू रिमूव H। ठीक, तो अब ये R तुम्हारा कैसा है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितने टाइप के H अवेलेबल, उतने टाइप के तुम्हारे R मिलते चले जाएंगे। तो अगर ये समझ में आया तो इट्स गुड, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
number of secondary carbon atoms in toluene. So toluene structure you have to know. If you know the structure, you can easily find like this. This carbon is 1 degree. This carbon is 3 degree. This carbon is 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree, 2 degree. Any confusion, anyone? No, sir. हाँ, तो इसका भी आंसर आप लिख पाएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 6 आया था क्या किसी को पता? सर इसका आंसर 5 होगा ना? किस चीज के लिए? 2 डिग्री के लिए 1 2 3 Sure. 4 5. Question number 6, the answer to that is 3. The Yes, number of secondary carbon, yes, absolutely correct. Yes, sir, it's 3. Question number 7 beta. 6. आया क्या किसी को? Yes, sir. It will be 6. x plus y is equal to 6. चलो क्वेश्चन नंबर देन ये 7 था ना. 8th आंसर इज 5. Yes, sir. 5. 5 आया ना. हो गया ना? ये किसी को डाउट तो नहीं है इस पे बेटा? नहीं सर अभी आया, ऊपर वाला किया तो अभी ये वाला भी आ गया. अच्छा, फिर मेरे ख्याल से 9th भी आ जाएगा, है ना? सर बोलो. क्वेश्चन 7 एक बार समझाओगे? कोई बताएगा बेटा इसके लिए? एनीवन? So what did he say? What did he say, sir? Can you explain that question? 7th one पूछा. 7th पूछा बेटा, मुझे लगा 8th पूछा हो. क्या पूछा बेटा? सामने आओ. 8 सर. 8th पूछा है. कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा 8th? सर मैं explain So कर दूं? secondary alcohol is where like the halide which is attached to it, the carbon atom will be attached to 2 more carbon atoms branching towards it. Like if you see the second one, the in the 8th second one, the oxygen is attached to a carbon atom which is branching out to 2. No, sir, not that one. One sec. It was 3, right? Yeah, 3. The third one. One oxygen is help each attached other, to a beta. carbon अगर कोई- atom which is branching out to 2 other more. That is a secondary alcohol. But if it is attached to a single atom, single carbon atom like the 4th one, then it is only a primary alcohol. बेटा बीच में तो अपनी क्वेरी भी बोलते रहो, नहीं तो क्या होगा? तुम एंड में फिर बोलोगे कि एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तो ऐसे नहीं चलेगा. Hello. यस बेटा. Sir, I think 4th one is secondary alcohol. इसीलिए तो मैं उससे बोल रहा हूँ, अगर वो हर चीज के लिए हाँ या ना कुछ बोलेगा तो कैसे चलेगा? 8th वाले में जो 4th है बेटा ना, वो प्राइमरी एल्कोहल है. Yes, sir, that is primary. This carbon is 1 degree. That is why the whole alcohol is primary. तो सर 3rd और 7th वो हो गया ना, 3rd और 7th में secondary alcohol होगा. 3rd वाले में आपका टर्शरी एल्कोहल है. वो First tertiary वाले है में सर. अब देखो, आप खाली उस कार्बन पे फोकस करो बेटा. ये OH तो हो गई. नाउ सी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद दिस कार्बन. यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो टर्शरी हो जाए. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, थैंक यू. हो जाएगा ना. 9th वाला भी सेम मैनर में आप करिएगा, है ना. 10th वाला बेटा किसी को आया? अभी बेंजाइलिक कार्बन का हिंट दिया था मैंने आपको. चल तो sir, how will a secondary alcohol look? secondary alcohol, OH will be connected with carbon, carbon will be connected with 2 more carbon. तो सर 3rd one तो correct था. हाँ sir, 3rd वाला correct है. वो सर. हाँ, 3rd वाला secondary alcohol होगा, 2nd वाला tertiary है. यस है ना. और कोई कंफ्यूजन है इसको लेकर के? एग्जाम्पल इतने सारे सामने लिखे, 9 10 एग्जाम्पल. हाउ मेनी एग्जाम्पल्स यू वांट? आप बोलोगे मेरे को सेकेंडरी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बोलो. और सर अगर एक अल्कोहल एक पेंटेन साइक्लोपेंटेन से अटैच्ड है तो एल्कोहल साइक्लोपेंटेन से अटैच नहीं होता. OH ग्रुप इज कनेक्टेड विद, हाँ ऐसा सर, बोलो. मतलब वही OH ग्रुप. हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप इमोशनल हो रहे कंपाउंड को लेकर. एंड आई एम सेइंग कि आप फोकस करो उस कार्बन पे जो OH से कनेक्टेड है. यस सर. Just focus on this carbon. This carbon is connected with how many carbon atoms? Either or either. Sir,
सर तो फिर इसका 5th का मतलब 8 का आंसर 5 होगा ना? मैंने अभी 5 या 6 कुछ बोला ही नहीं, मैं तो केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो फिर आपस में ना आंसर निकालिए और एक दूसरे से डिस्कस करना। अभी तो इसको कोई ऐसा नहीं मानकर चलना ये शीट फिनिश हो गई। इस पे तो बार बार आप इसको सोचो इसके बारे में, ठीक है? जब हम सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे तो ही सिलेक्शन हो। हम सब का मतलब मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ। 9th भी सोच पाएंगे इसी तरह से बेटा? यस सर। चलो 10th तो मेरे को बताओ बेटा। 10th पे मेरा फोकस था, आप इधर उधर लेकर वापस चले गए। 10th वाले के लिए कोई? Sir, 3. Sir, 3. बेंजाइलिक कार्बन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 बिल्कुल सही। Thank you, sir. अब बताइए बेटा, सब्जेक्टिव टाइप में कोई कौन सा क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि ये तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का है, एल्काइल ग्रुप का। व्हिच वन यू वांट? Sir, I tried the first one. Can I state the answer? क्योंकि आंसर्स मुझे रटे नहीं हुए हैं तो मैं केवल उसको निकाल सकता हूँ, ऐसा Sure, sir. है ना? ये सब मैंने शीट केवल तुम्हारे लिए बना के रखी थी, इनके आंसर्स वगैरह ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने खुद टाइप किए हैं बेटा। हर चीज जो स्ट्रक्चरली तुम्हें दिख रहा है ये सब मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज अनसेटिस्फाइड वैलेंस, इसीलिए मैंने अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को बड़ा सा दिखा दिया था। ऐसा नॉर्मली बुक्स में होता नहीं है, वो तो उतना ही बड़ा बॉन्ड दिखाएगा ना जितना होगा नॉर्मली। तो अब इस वाले में बताइए भाई, फर्स्ट कार्बन कौन सा होगा जिसको 1 डैश बोलोगे यहाँ पर? द कार्बन विच इज हैविंग अनसेटिस्फाइड वैलेंसी व्हिच यू विल कनेक्ट विद पेरेंट चेन, and first carbon is a part of cycle, then what will you say? Since first carbon is part of the cycle, we will select longest chain within this complex alkyl, और वो कैसी होगी बेटा? साइकिल ओनली। 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. सर नो सर, ये रिपीट कर दो ना प्लीज। क्या चीज रिपीट करते हैं? नंबरिंग या 1 डैश कैसे सर ये डिसाइड किया? नंबरिंग नहीं सर, नंबरिंग। नंबरिंग। तुम्हें 1 डैश डिसाइड कर लिया? यस सर, वो पेरेंट चेन वाला। नहीं, पेरेंट चेन वाला नहीं है कार्बन, वो तो आधी चीज नहीं बोलनी है। मैंने कहा कि पेरेंट चेन वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है, मैंने कहा था कार्बन विच इज कनेक्टेड विद पेरेंट चेन। डिड आई से कार्बन ऑफ पेरेंट चेन? नो सर, सर आई मेंट दैट ओनली, लाइक इट्स कनेक्टेड विद मेंट क्या मतलब होता है? यू हैव टू, ये 1 डैश क्लियर हो गया, उसके बाद आपको 1 2 3 तो करना है, और क्या करना है भाई? 1 डैश के बाद 2 डैश आएगा, 2 डैश के बाद 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। केवल कॉन्सेप्ट ये है कि if your 1 dash carbon is part of cycle, then you cannot go outside cycle. अच्छा, ओके सर। If your first carbon is not part of cycle, is part of open chain, then you cannot enter into cycle. ठीक है, ये सब आप हाईलाइट कर लेना बेटा। इसका नाम क्या है? दिस इज प्रोपाइल। इसका नाम क्या है बेटा? दिस इज प्रोपाइल। इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल। इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल। तो इसको कैसे करोगे बेटा? प्रोपाइल पहले आता है कि इथाइल? Sir, ethyl. हम लोग लिखेंगे इसको डाईइथाइल, लेकिन डाईइथाइल किस Di- कार्बन के साथ है? 3 डैश, 4 डैश। डाईइथाइल फिर क्या लिख देंगे बेटा? 2 डैश, 5 Pi डैश, dash. what? Dipropyl. Dipropyl. And this is not simple alkyl, So, sir, so you have to write cyclopentyl. absolutely correct, fantastic बेटा। यही लिखा था, तुम मेरे से पूछ रहे थे नाम। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। बाकी लोग भी इसकी तरह कुछ करें बेटा। अब वो आंसर भी सही सही देता है, पार्टिसिपेट भी करता है। बहुत सारे बच्चे आंसर भी नहीं दे रहे हैं, और जो है सही गलत क्या किया ये भी तो पता ही नहीं है ना। कॉपी कर लिया बेटा इसको? सर 1 सेकंड। Sir, just a minute. मैं सेकेंड, ये जो सब्जेक्टिव है ना, इसके सारे आंसर्स लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये आपके कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप का डिस्कशन हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा। इसमें सबसे पहले चीज ये क्या लिखनी होती है बेटा? आइडेंटिफाई कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन, दैट विल बी 1 डैश कार्बन।
सर हम्म सर एक डाउट था, जो बेंजाइलिक कार्बन एटम्स होते हैं, दे आर कार्बन एटम्स अटैच्ड टू बेंजीन ग्रुप ना? यस बेटा, ओके they are directly connected to benzene, they are not carbon of benzene. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. अच्छा ओके सर. Should I remove this? सर मुझे सर नंबरिंग अभी भी समझ में नहीं आया, 1 डैश 2 डैश किसकी 3 डैश 9 डैश 5 डैश का. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, तुम पूछना क्या चाहते हो. सब मैंने जो चीज बोली, जैसे ही मैंने लिखा आइडेंटिफाई कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद पेरेंट चेन, क्या ये नहीं समझ में आया? और ये नहीं समझ में आया तो कैसे नहीं समझ में आया? नहीं सर, वो समझ में आया. अगर ठीक से, हाँ, फिर क्या आगे नहीं समझ में? फिर मैंने बोला कि अगर फर्स्ट कार्बन पार्ट ऑफ रिंग, यू कैन नॉट गो आउटसाइड रिंग, आपको रिंग में ही मूव करना है पूरा और लॉन्गेस्ट ढूंढना है. अब उसमें बताइए 2 डैश क्या होगा, कैसे पता नहीं चल रहा? 3 डैश कैसे पता नहीं चल रहा है कि मेरे को इधर ही जाना है क्योंकि वो रिंग का पार्ट है? मैं इधर क्यों नहीं कि आपको पता चलना चाहिए? नहीं सर, 3 डैश के बाद फिर डायरेक्टली 9 डैश. 9 डैश? अरे भाई, सर राइटिंग अरे वो प्रॉब्लम हो सकती है ना, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है. तो वही तो कह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम समझ रहे हो, कॉपी कर रहे हो. अब मान लो ये किसी को 9 डैश लगा, फिर 5 डैश, तो कॉमन सेंस आएगा कि नहीं? वो तो राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है. सॉरी सर, सॉरी. और कोई है इसके जैसा? ट्राई रिमूव दिस. डाउट बोलो बेटा. 10 सब में डाउट था मेरे को. तो आपने बोला बेंजाइलिक मतलब एक कार्बन जो बेंजाइल रिंग को कनेक्ट होता है, वैसा उसमें 10th में 3 कार्बन मतलब 2 रिंग कनेक्टेड है एक रिंग को, इसलिए अपन 2 + 1 किया ना वो. तुम पता नहीं रिंग रिंग क्या करो, मैं समझ में नहीं आ रहा. मेरा फोकस बेंजीन कम रिंग है, उससे जुड़े हुए डायरेक्टली कार्बन एटम्स को चेक किया, 3 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो अगर समझो खाली 2 रिंग कनेक्टेड है वो बॉन्ड से, तो अपन खाली 1 करेंगे ना, आंसर 1 होगा फिर क्या? कोई समझ पा रहा है क्या पूछ रहा है ये? क्या कोई बता सकता है, इसकी मदद कर सकता है? ये बहुत ही उल्टी सीधी चीजें में आ जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता. मैं टाइम सेव करने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना चाहता था, और ये कुछ इस तरह से सवाल करेगा कि बिना ड्रॉ किए बता ही नहीं सकते उसको. पता नहीं क्या कर देता है, ये कर दो, वो कर दो, ये हटा दोगे, तो हटाने के बाद कम से कम सही बोल दे तो भी सही है. हटाने के बाद ये आंसर भी गलत बोल रहा है, कचरा कर रहा है. अरे कम से कम ये बोल देता है सर ऊपर का मिथाइल हटा देंगे तो आंसर 2 होगा ना, तो भी समझ में आ रहा है. वो ऊपर का मिथाइल हटा दिया और आंसर 1 बोल रहा है. अरे भाई, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ, ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कार्बन, क्या तुम हटा दोगे क्या बचेगा? व्हाट आर यू सेइंग? शाम समय 2 रिंग्स की बात कर रहे थे खाली, वो आपने 3 समझ गए सर. अब समझने का क्या मतलब है? इतना इसमें फिर टाइम वेस्ट किया उसको डिजाइन बनाने में. सेकेंड क्वेश्चन का कोई नाम ऐसे ही बोलेगा क्या बेटा? क्योंकि मैं लिखूंगा उससे पहले आप अपना बता दो कोई. एनीवन? ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है बेटा, कई बच्चे जो केवल डाउट्स पूछते हैं और बहुत ही लो लेवल के डाउट्स पूछेंगे, लेकिन खुद आंसर्स नहीं देते. कोई आंसर उनकी तरफ से नहीं आता कि सर हमने ये आंसर निकाला हुआ. राइट रॉन्ग तो छोड़ दो, उनको केवल डाउट्स पूछना है. मतलब वो डिले भी कराएंगे लेक्चर में और इस बात के लिए भी नहीं आएंगे कि हमने ट्राई किया है. एटलीस्ट कम से कम टीचर को ये एनकरेज करें, या अदर स्टूडेंट्स को भी, पढ़ने वाला बच्चा है इसलिए डाउट्स पूछ रहा है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता है, वो आंसर्स भी देता है. इट्स नॉट अबाउट राइट रॉन्ग. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हार्डवर्क भी करते हैं, आंसर्स भी सही से देते हैं और टाइम वेस्ट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछते. वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जितनी जरूरत उतना पूछेंगे, और जब पढ़ाया जा रहा है तब पूछ रहे हैं. कुछ बच्चे क्या है, कर रहे हैं हम कुछ और क्वेश्चन, फिर वो पुराना वाला उनके दिमाग में अचानक कुछ आ जाएगा, वो उसके लिए पूछना शुरू कर देंगे. यस बेटा. सर यस. 1 डैश कॉमा 2 डैश डैश ट्राइमिथाइल बेंजील. थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया. एक चीज थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी कि अगर फर्स्ट कार्बन यानी 1 डैश कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग, देन यू कैन नॉट एंटर व्हाट?
रिंग। मेरी बात समझ में आई? Yes, ये sir. अनसेटिस्फाइड वैलेंसी है, विच कार्बन इज योर फर्स्ट कार्बन? Sir, CH wala. CH वाला, तो दिस इज 1 डैश। नाउ Yes, फ्रॉम sir. हियर यू ट्राई टू फाइंड लॉन्गेस्ट ओपन चेन। यहाँ से लॉन्गेस्ट ओपन चेन की तरफ जाओ। Sir, benzene की तरफ. हाँ, तो इधर जाऊंगा बेंजीन की तरफ, तो दूसरा कार्बन आया 2 डैश। अब मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं या इधर जाऊं? इधर जा नहीं सकता बिकॉज आगे तो साइकिल है एंड वी कैन नॉट एंटर वेयर साइकिल। Cycle. So either we will go this side or this side, and both sides we are getting 1 carbon. So you go anywhere. Got it, sir. यानी कि लॉन्गेस्ट चेन इसकी कितनी हो गई बेटा? कितने कार्बन की? Sir, 3. 3 कार्बन की। हो गया, ठीक। यानी इसका नाम तो प्रोपाइल ही होगा, कुछ भी हो जाए। बट प्रोपाइल से पहले क्या लगाएंगे? तो हियर यू हैव मिथाइल, Sir, 1,2-dimethyl. हियर यू हैव मिथाइल, एंड दिस इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक, इस रिंग को अगर पहले बताया तो ठीक, नहीं तो अभी बाद में भी लिखाऊंगा, वो तो Yes, शीट sir. मैंने बीच में दे दिया आपको। तो ये हो जाएगा। इतनी बार मैं चीजें कराता हूँ, मैं खुद नहीं पता चलेगी ये पहले बताया ही नहीं बताया मैंने आपको। 1 डैश, इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? 2 डैश 2-dimethyl. डाइमिथाइल, एंड देन 2 डैश 2-phenol. Phenyl or फिनाइल। phenol? Phenyl. Okay. फिनाइल फिनाइल फिनाइल, Phenyl. ठीक है। ये लिख लो बेटा सारे बच्चे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं तो फिर आगे बढ़ Sir, जाएंगे। done. चलो, इसका कोई नाम बताना डिफिकल्ट है? एनीवन जो इसने ट्राई किया हो? Sir, ये थोड़ा confusing है. सर 1,1,5,5 हाँ। ट्राइमिथाइल। सर फिर वो ट्रायंगल वाला आएगा 2 डैश। साइक्लोप्रोपाइल। हाँ सर। वेरी गुड, ट्राई अच्छा किया आपने। बताइए विच कार्बन इज 1 डैश कार्बन बेटा? Sir, first वाला. फर्स्ट तो ये भी हो सकता है, No, CH sir, वाला वो का। CH. Yes, sir. अब इधर जाएंगे 2 डैश, क्लियर है किसी को? क्या रिंग में एंटर कर सकते हैं? No, sir. नो। फिर इधर 3 डैश, इधर 4 डैश, इधर 5 डैश। आगे जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं? विच साइड? Sir, कहाँ पे भी जाए चलेगा. हाँ, फैंटास्टिक। एटलीस्ट इतना ही कोई कर ले, कम से कम ये तो पता चले इसका नाम हेक्साइल है। ऑप्शन में होगा ना, कहीं हेक्साइल दिया हो, कहीं हेप्टाइल दिया हो, कहीं कुछ दिया होगा, हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाए। इज इट क्लियर? अब आप Yes, देखो sir. क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है। हियर यू हैव मिथाइल, उनको सेपरेटली लिखना शुरू कर दो। मिथाइल, मिथाइल। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने की अभी, आपको पता चली क्या? ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोप्रोपाइल। So there's a double bond in it. यस, आई फॉरगॉट की डबल बॉन्ड भी लगा, यानी ये आंसर नहीं लिख सकता मैं। तो डबल बॉन्ड वाले केस में क्या आता है? हेक्सिनिल, समझे ना? लेकिन वो जो हेग्स है वो किस, सॉरी ईन है, वो किस पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड। तो हेग्स Third. थर्ड, इनिल। समझ में आया बेटा? Got it, sir. हेक्साइल के बदले ये हो गया बिकॉज बीच में डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं आता तो सीधे हेक्साइल हो जाता। और इसके पहले क्या लिख, इसके पहले मिथाइल मेंशन करना है, तुम साइक्लोप्रोपाइल मेंशन करना है। साइक्लो और साइक्लोप्रोपाइल का सी लेना है क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल एज अ होल नेम है, और मिथाइल है। तो बताइए कौन पहले आएगा? साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो जाएगा 2 डैश साइक्लोप्रोपाइल, और क्या हो जाएगा? 5 डैश डाइमिथाइल। 1 डैश So 1-5 5 trimethyl. अब ये गलती से मैंने यहाँ, मीन्स आपको यहाँ लिखना, मैंने वहां गलती से लिख दिया। आप उसको ठीक कर पाओगे बेटा? Yes, sir. Yes, एक्साइल नहीं होगा, ये ध्यान देना। दिस होल थिंग यू हैव टू राइट हियर। सर वो हेक्स 3 डैश इनाइल वाला पार्ट एक बार बताओ। कोई हेल्प करेगा बेटा इसकी? एनीवन जिसको समझ में आया हो? वेरी गुड।
आगे आओ बेटा, डिस्कशन नहीं करोगे तो ब्रेन कैसे ग्रो करेगा? चुपचाप नहीं बैठना है। एनीवन? Sir, what did he say? हेक्स 3 डैश तो समझ में आ गया, खाली वो इनाइल का क्या कंसेप्ट है? एनीवन? थर्ड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। नहीं उसमें खाली इनाइल है ना, खाली इनाइल, वो इनाइल क्यों लिखे? ऐसा दिखाया जाता है, डबल बॉन्ड वालों के लिए एल्कीनिल होता है और ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए एल्काइनिल होता है बेटा, और सिंगल बॉन्ड सारे होते हैं तो उसको एल्काइल बोलते हैं। ये तीन होती है, मोस्टली हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके आपका वॉइस थोड़ा क्रैक हो रहा था। आपको नहीं समझ में आया? मैंने तीन चीजें बताई जो स्क्रीन पर। नहीं सर, आ गया समझ। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं बेटा। Yes, सर sir. नेक्स्ट का वो बस वो जो चेन वाला है उसका नाम बता दो ना प्लीज। मतलब समझा नहीं, नाम तो मैं बताने जा रहा था। सर नहीं, जो चेन है फिर उसके ऊपर ट्राई कर दो। कोई समझ में आ रहा है बेटा कुछ? मेरे ख्याल से आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं सुनाई। Am I audible बेटा? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ, Yes, क्योंकि आई sir. एम गेटिंग कंफ्यूज, बीच में रुक गया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें अगर आप देखोगे तो ये दिया हुआ है ना CH3, फिर एक Cl लगा हुआ है, फिर एक फिनाइल रिंग लगा हुआ है, CH2 है, फिर CH डबल बॉन्ड CH है, फिर C है, इधर CH3 है, और फिर ये अनसेटिस्फाइड वैलेंस है। बताइए फर्स्ट कार्बन किसको दे देंगे? Sir, CH. डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। कैन आई एंटर दिस रिंग? बहुत No, सारे sir. कार्बन मिल जाएंगे No, उसमें। Sir, इवन 6 तो says कार्बन बहुत CH3. सारे मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ मिल नहीं सकता उसमें नंबरिंग का। फिनाइल इसको बोलेंगे, ये मिथाइल है बेटा, सॉरी इसको मिथाइल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ चेन हो गया। ये क्या है? क्लोरो हो गया, Chloro. ये मिथाइल हो गया। अब आप लिख पाओगे बेटा? क्या लिखें इसको? हेग्स 2 डैश। आप हेक्सेनल भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन 2 डैश मेंशन करने से परफेक्ट हो जाएगा। आपको कोई एरर उसमें कोई बोल ही नहीं सकता कि यू हैव मेड, यू आर मेकिंग मिस्टेक। कुछ कोई एरर ढूंढ ही नहीं Put सकता। 2 before 2 hexane. डैश नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो मिक्सड अप हो जाएगा। अगर कोई ब्रांचिंग नहीं हो, कुछ ना हो, देन इट कैन बी रिटन। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं हो क्लोरोफिनाइल, देन वो कंसिडर, वो ओल्ड मेथड था एक्चुअली, तो इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं समटाइम्स। तो ये को क्या, फिनाइल क्लोरो एंड मिथाइल, विच वन विल कम फर्स्ट बेटा? Sir, chloro. बस 5 5 dash dash chloro, One dash then 1 dash methyl, 5 dash Sir, 5 dash 5 phenyl. dash phenyl। सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है, चुप बैठोगे तो काम नहीं चलेगा। Should I remove this beta? Yes, sir. सर जस्ट अ सेकंड। Sir, 1 second. Hmm. Yes, sir, done. Then next क्या, ये 5th क्वेश्चन बेटा लिख दो, डिस्कशन लेटर Right, sir. आफ्टर आइसोमेरिज। Sixth ऑल्दो also, आप में sir. से, व्हाट डिड यू से बेटा? सर प्लीज लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, 1 मिनट बस। ओके, तब तक बाकी डिस्कशन लेटर ऑन आफ्टर आइसोमेरिज्म। आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, केवल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन Sir. इसका हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर उसमें बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछने लगते हैं जो अभी मैनेज करना मुश्किल है। यस बेटा, आर यू सेइंग समथिंग? सर आई सेड डन। ओके, 6th वन के लिए भी क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, हाँ ये भी वही चीज है, उसको भी आप स्किप कर दो अभी के लिए। और 7th में व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एल्काइल? तो ये भी आसान है मेरे ख्याल से, अब हो जाना चाहिए आपको। ये कार्बन आपका है और यहाँ फिनाइल रिंग लगा हुआ है, दिस इज अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, फर्दर इट इज ट्रिपल बॉन्डेड, then CH, here you have CH2 CH3, here you have this,
तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 डैश कार्बन। क्लियर है ना? इधर क्यों नहीं जा रहे हैं, आपकी क्लियरली मेंशन करना है, वी कैन नॉट गो दिस साइड, व्हाई वी कैन नॉट एंटर इन द रिंग, बिकॉज फर्स्ट कार्बन इज ओपन चेन कार्बन। 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, शुड आई गो दिस साइड बेटा, नीचे की तरफ बहुत सारे कार्बन है। No, sir. No, sir. 5 डैश। अब ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये अनक्लियर रहा हो कि हम यहाँ पर क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं इतने सारे कार्बन एटम्स। ये चीज हाईलाइट कर लेना चीज, हाँ बेटा, the first carbon is open chain part of open chain, that is why the alkyl group will be decided by open chain only. तो ये इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, 6 कार्बन है, हेक्स तो आएगा ही आएगा। अब क्या करें बेटा, बोलो एनीवन? 2. Three. Sir, hex 2 aisle. 2 इनाइल Enyl. So है ना? enyl तो डबल का हुआ ना? ट्रिपल है, वो EN है, वो प्रोनाउंसिएशन ये एक ही Y जैसा है। हाँ, तो प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है? Yes, sir. but it's inyl na, YL बेटा। YNYL. ठीक है, सर मुझे समझा नहीं यहाँ पे 6 कार्बन कैसे आ कोई रहे हैं। एक्सप्लेन करेगा बेटा इसको? सर नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं, मतलब लाइक CH के बाद Question. वो 2 अपने ऐड कैसे कर दिए? Daksh, before the CH3, the last which sir wrote, there is a carbon before it, if you see carefully. Before the triple bond. Yeah. In the horizontal line, there are 4 carbon atoms already. And while they branch towards CH, there are 2 there attached as well. The first is Acha. connected to the parent chain. 2 are in triple bond. 1 connects to the last phenyl ring, and 2 are up. डन बेटा? चलो, so we Yes, have sir. this. Phenyl ring na. Now open the lecture notes बेटा, जहां पर हमने देखो डबल ट्रिपल के सारे चीजें कर ली थी, राइट ना? Now next rule you write बेटा, and this is the most important. Sir, oh, last पिछली स्लाइड पे जाएंगे वापस. प्रीवियस बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये सर, ये अगर फिनाइल होगा जिसमें ऑक्सीजन है तो ये साइक्लोहेक्सेन होता. ऑक्सीजन नहीं है वो रिंग है, उसको ओ ऑक्सीजन सॉरी, रिंग है तो सर वो फिनाइल है, तो ये हाँ। साइक्लोहेक्सेन होगा. हेक्सेन नहीं, हेक्साइल होता। नहीं नहीं, ये उसके बाजू वाला. ये वाला, हाँ ये और सर इसको लिखना भूल गया ना, साइक्लोहेक्साइल है। हेक्साइल. हाँ, और ये क्या है, ये फिनाइल, फिनाइल. ठीक है, वो आप आगे लिख लेना यहाँ। Just the naming we will learn, no? ahead. We will learn, we had already। और ये Sir, no, एग्जांपल no. का, ये हाँ। जो cyclic compounds है उनका। हाँ साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है ना, ये तो एल्काइल ग्रुप का, साइक्लिक का नेमिंग सीखेंगे, बिल्कुल सही। Okay. इसको हटा दें। सर यस सर. चलिए कुछ पूछ रहे हैं, आर यू सेइंग समथिंग? नो सर लास्ट लेक्चर में मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट किया था, वो हमको पूरा मतलब बाहर करना है ना, वो सबका सब? हाँ मतलब मैं, तुम किस स्टाइल से पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास हर बच्चे का आंसर है। कोई अगर ये कह दे सर मेरी एबिलिटी बहुत अच्छी है, मैं याद कर लूंगा, तो मैं उसे क्यों रोकूं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है सर मुझे इतना याद नहीं होता है, तो उनके लिए रहता है कि आप वेट करिए, पेशेंस रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। जैसे फ्रेंड्स के नाम रटते थोड़ी ना है ना, फ्रेंड्स मिले, उनसे बातचीत की, उनका नाम पूछा, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होते हैं, नाम याद रहते हैं, उनसे बातचीत उतनी नहीं होती है, तो वो चीजें हैं बेटा, है ना। ऐसा कभी तुम्हारा किसी स्कूल में एडमिशन हुआ और टीचर बोले कि नहीं बेटा आज ही रात में सारे दोस्तों के नाम रट लेने हैं, पॉसिबल है क्या? आप भी सोचो क्या टीचर मजाक कर रही है, वही चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज हमको लिखी है सिलेबस में, वो क्वेश्चन तुम पूछो ही नहीं मुझसे कि ये करना है क्या, अरे किया ही इसीलिए कि वो याद रखना है। लेकिन हर किसी की अपनी एबिलिटी है, आई कैन नॉट फोर्स ना कि तुम आज रात में रट डालो। चलो
नेक्स्ट रूल लिखिएगा, एंड दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बिकॉज नाउ यू हैव टू इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप वाला रूल कर लिया था क्या हमने? गाइड So करो the मैडम. last rule we did was in case of aliphatic compounds with अच्छा functional अच्छा, group. हाँ हाँ वही, दैट इज द Perfect. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो आई You गिव gave दैट. the tables and all. Like, प्रायोरिटी ऑर्डर सबने लिख लिया है ना बेटा? yes, the priority order list to give. So now I can take those examples directly. Very good. I thought I have not given you priority. See, you all are having, priority. अब सुनो, एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. जैसे देखो, CH3, CH2, CH2, CHO, CH2, CH3. Which one is the longest chain, beta? So CH3 से last CH3 तक. Hexane. Chain. ये है ना, लेकिन पेरेंट चेन किसको लोगे? तो थर्ड वन. B. फर्स्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. क्यों? So because functional group. You have to include functional group in your parent chain, even if it is not the actual longest chain. And numbering will also start from there only if it is having carbon. Right? तो ये 1 डैश हो गया. 2 डैश किसको देंगे? उसके बगल वाले कार्बन. 3 डैश किसको देंगे? सर लेफ्ट इधर. पे जाओ. Number 1. हाँ, है ना, कितना आसान हो गया. भी दे सकते हैं ना, दोनों साइड इक्वली है. नहीं ना, इधर 2 ही कार्बन है बेटा, इधर ज्यादा मिल रहा है ना. यस सर. तो अब इसके नेमिंग के लिए क्या करोगे बेटा? रूट वर्ड क्या लिखोगे? 2 ethyl. Pentane. Will be pent. So Do we have pentanol. any double bond, triple bond, beta? Do we have any double or triple bond? No sir. No. तो ANE. Now CHO के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? अल. याद करो, अल. Yes sir. अल. ऑल नहीं, अल. तो ये वाला ई हटा देंगे और लिख देंगे अल, यानी इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल. पेंटेनल. एंड व्हाट इज द प्रीफिक्स बेटा? 2 ethyl. 2 ethyl. डन. आंसर कॉपी कर लो इसको. तो सर इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड ओ होगा ना कनेक्टेड उससे, डबल बॉन्ड हो कनेक्टेड. और अल्कोहल में एक condensed में भी OH लिखा होता है. रहता है. हाँ, अल्कोहल में OH. Got it. So we don't. Why are we putting 2 dash over here? It's the main carbon chain, no? Oh, it's my mistake bro. क्या इतना सारा करते करते वो डैश डैश निकलने लगा. इसमें सॉरी. हाँ, ये डैश डैश इसकी वजह से कि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया भी एल्काइल ग्रुप का. सबको 1 2 3 ही लिखना है, ठीक है? Should I remove this? So one sec. Sir, it's 2-ethyl pentanal, right? 2 डैश नहीं बेटा, 2 लिखना. Yeah, 2-ethyl pentanal, right? हाँ. Yes sir, done. Which one will be the parent chain बेटा? Sir, the straight one. The one including COOH.
क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आया बेटा? Sir, So PFS क्या है? it's preference, right? नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये जी है, ओ जी है. ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। Sir, this This is is the one which will come first in the table, right? यस बेटा, Sir, this is the first example for rule 8. नो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, तो रूल 8 से शुरू, रूल 8 के लिए बेटा, ठीक। अब आप इसको देखो बेटा, दीज आर एग्जांपल्स आपके नोट्स में होने चाहिए, तो यू हैव टू इंक्लूड दोस कार्बन एटम्स आल्सो जो फंक्शनल ग्रुप के हैं इन योर चेन। बताइए हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन? So 5. 5. 2 3 4 5 है ना, तो हम लोगों के लिए हो जाएगा पेंट, दैट इज रूट वर्ड। डू वी हैव एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द चेन? We have a Double double bond with oxygen, sir. oxygen with double bond. उससे कोई मतलब That's the नहीं, चेन उससे नहीं तो सर, हाँ तो नहीं. चेन में मतलब है, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव व्हाट ई, व्हाई? बिकॉज दिस टाइम आई एम गोइंग टू राइट डाई अल। सर vowel पहले नहीं आया फिर. हाँ, डाई अल लिखा इसलिए नहीं लिखा। सेकंड चीज, आई कैन राइट 1,5 डाई अल, बट ये जो 1,5 है ये बाय डिफॉल्ट आएगा, मतलब 1,5 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डेट्स के लिए। आप बीच में नहीं डाल सकते ना CHO, तो एंड में ही रहेगा, और एंड का मतलब ये है कि जो भी होगा, मतलब 1,5 भी लिखा होगा दैट इज आल्सो करेक्ट, उसको गलत नहीं बोलेंगे, बट नहीं भी लिखा है देन आल्सो इट्स ओके। व्हाट डिड से बेटा? सर लेकिन 1,5 कैसे? फर्स्ट वाले में सर यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना. ओ सॉरी, मुझसे मिस्टेक होगी, तो इसको CHO कर दो। मेरे माइंड ये- में ये चल रहा था, Sir, what about the Okay. hydroxylene मेरे O3? माइंड में ये चल रहा था, मैं वो वाला एग्जांपल भी ले लेता हूँ, मेरे माइंड में ये चल रहा था, इसलिए मैंने ये Got वाला it, करके sir. करिएगा। मैं आई विल टेक दैट एग्जांपल आल्सो, अगर लिख गया तो उसको भी कंसीडर कर ले। ये सबको समझ में आया? आपको किसी को डाउट है कोई? No sir. नहीं है ना? और केवल ये हमारे ये भी फंक्शनल ग्रुप है, बट दिस विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, और इसका प्रीफिक्स में नाम क्या लिखा है बेटा? तुमने उसमें देखो जाके, जो कॉपी किया था लास्ट लेक्चर आपने, सबको मिलेगा। Hydrox. बस हो गया। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन बेटा? No sir. कॉपी कर लो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये Sir, सब in समझ the- एट्थ रूल का कंक्लूजन ये मतलब एग्जांपल्स के थ्रू निकाल रहे हैं। बोलो Sir, in the third rule, what is the starting word that you have given? Alkyl, right? मतलब रूल टू वो along with second point, No, third one. Like थर्ड में in the ही लिखा है along with, Oh, along. along with two मतलब second point, if possible select double and triple bonds also in the parent chain, तो यहाँ नहीं है, Okay, sir, got it. ठीक है ना? ये सबके लिए, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं था, ये सबके लिए यही काम करना है हमें फ्यूचर। देखो आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, हाँ बेटा, जो हमारा वो रह गया था, ये सर अब इसमें बताइए बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? COH होगा, OH होगा या CHO होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करोगे, मिल जाएगा। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 कितने कार्बन एटम्स हो गए बेटा? 5, तो मैं क्या लिख दूं? पेंट, ठीक। और COH तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन पे होगा, तो नो नीड टू राइट दैट O के साथ फर्स्ट, लेकिन A एंड E तो जरूर मेंशन करेंगे और E रिमूव कर देंगे। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन बेटा? No sir. अब फिफ्थ पोजीशन पे यू हैव ऑक्सो, हियर यू हैव हाइड्रोक्सी, व्हिच विल कम फर्स्ट? Sir oxo. तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 ऑक्सो 3 हाइड्रोक्सी एंड पेंटेनॉइड। कॉपी कर लो बेटा।
सर पेंटेनोइक एसिड को साथ में लिख सकते हैं कि ओइक और एन के बीच में डैश देना होगा? नहीं नहीं, सब साथ में आएगा। गॉट इट सर। डैश तभी आता है जब वहां लुकेंट लिख। हेलो सर, कैन यस। राइट OL इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सी? ओएल नहीं, हाइड्रोक्सी ही लिखना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर लिखाया है ना, प्रीफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स सबके लिए। व्हाट इज बेटा? एक बार खाली एक सेकंड के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। Sir, but how will decide that it is prefix or suffix? सर वो अपने If it is not- 1,5 If के it is बाद not क्या लिखा? principal functional group, it will be prefix. Yes, beta. Sir, what had you written after 1,5 in the previous slide? 1,5. मैंने लिखा हाँ, sir, वो top 1,5 पे- can be written, but इसको कुछ नहीं लिखा था, ऐसे ही है। अच्छा So, इसको भी हाँ बोलो। sir, if we write 3 hydroxy before 5 oxo, is that correct? कोई एक्सप्लेन करेगा बेटा? H पहले आएगा कि O पहले आएगा? सर ओ पहले आएगा क्योंकि वो वॉवेल है। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये कहीं लिखाया है मैंने? रूल का कोई तो सब पॉइंट था। कहीं नहीं लिखा हुआ है, दोबारा देख लो जा करके। अल्फाबेटिकली लेते हैं, इसका मतलब पहले किसको डालना है मुझे? हाइड्रोक्सी। हाँ Hydroxy. ठीक है, अल्फाबेटिकली लिखना है बेटा। सब लोग क्लियरली सुन लें, इसको सब कॉपी कर लो बेटा। If any confusion, you please ask. सर मतलब हाइड्रोक्सी पहले आएगा? हाइड्रोक्सी पहले आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिकली जानना है। सर यस बेटा। सर प्लीज कुड यू गो बैक वन सेक? सर उधर आपने 2 के बाद क्या लिखा है सर? उसके बाद कहाँ पर? थर्ड पॉइंट में। Along with 2, if possible, select double and triple bonds also in the parent chain. देखो इसका एग्जांपल देते हैं ना। बताइए बेटा, which one will you select as parent chain? 1, 2 or 3? Third one. 2. सर 2। सर 2। 2. Yes. Even though it is longation, हमने क्या बोला? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो लेना ही लेना है, राइट? एंड उसके साथ साथ अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो उसको भी लो। तो ये हो जाएगा 1, दूसरा पेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली हमारे लिए? प्रोपाइल। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंट। Yes, this time we have double bond in our parent chain, so pent 4 enoic acid. Any confusion beta here? Any confusion? No sir. No. You all right beta? Sir, we don't need position for principal functional group. We don't need position for principal functional group. अगर वो end पे है तो
तो वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब कहीं और होता तो हम जरूर लिखते उसको। ठीक है, हटा दें बेटा इसको। सर पीएस का क्या लिखा है? प्रिंसिपल सफिक्स के ये आगे सारी होता वो है। सर वो लास्ट वाला है। प्राइमरी सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है, सर वो ये पता है। सेकेंडरी सफिक्स। ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। बेटा अगर मेरी आवाज कभी कभी ओके नहीं सर। आए ना तो कोई दूसरा भी हेल्प कर सकता है। हाँ, should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक बेटा स्पेशल रूल आता है, अनफॉर्चुनेटली स्पेशल रूल, वो हाईलाइट कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एक दो और प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस देता हूँ, आप करिए उसको, है ना। स्पेशल रूल में लिखिएगा बेटा, इफ 3 or more carbon containing identical principal functional groups, identical principal, if 3 or more carbon containing identical principal functional groups are attached to carbon chain, then parent chain is selected by excluding these groups, and special suffixes are used. इतना देखो, सब मेरे को इन्फॉर्म करो, इतना लिख लिया हो तो। डन सर। डन। Yes. Yes, sir. अब देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको बेटा, आज बहुत सारा डिस्कशन हो गया, मेरे ख्याल से शीट्स भर गई सारी। तो इसमें पॉइंट ये है बेटा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, अगर मैं ऐसा एग्जांपल ले लूं, तो इसमें 2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेटा और आइडेंटिकल है दोनों, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 2 हैं, तो कार्बन कंटेनिंग भी है, आइडेंटिकल है। क्या सबको दिख रहा है बेटा? Yes, sir. दिख रहा है। इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नंबरिंग वगैरह, है ना। इसका अगर मेरे को नाम लिखना भी होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, पेंटेन या मैक्स टू मैक्स 1,5 डाइओइक एसिड, या फिर इसको ज्यादा मतलब रूल वाइज चले जाएं तो पेंटेन डाइओइक एसिड। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन बेटा? सर आपने ऊपर डाइल DIL लिखा कि DI? डाई है केवल। ओके। ठीक है ना, किसी को कंफ्यूजन आजकल ऐसा लिखने लगे हैं बिकॉज 1,5 वो ND होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्पेशल रूल नहीं है, ये आपको समझ में आया ना, पुराने रूल से मैंने किया। एनीवन एनी कंफ्यूजन? नो सर। नहीं ना। अब आप ध्यान से सुनो, स्पेशल रूल, अगर इसी कंपाउंड के बदले मैंने को ये मिल जाता, तो आप ध्यान से देखो कि 3 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है आइडेंटिकल। क्या तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसमें उसने बोला कि अगर ऐसा हो तो आप उनको एक्सक्लूड कर दो, उनके कार्बन को, और नॉर्मल चेन सेलेक्ट करो जिसमें वो चेन से डायरेक्टली तीनों जुड़े हों। यस, ये
में आ गया बेटा, बोलो यस Yes, और sir. नो। अब इसमें क्या Yes, करना sir. है बेटा, सर तीन कार्बन का जो नाम है वो लिख दो, प्रोपेन है, और किन किन पोजीशन से जुड़े होंगे कोई नंबर कर दो 1 2 3, तो So ये हो 1, जाएगा 2, 3. 1 2 3। अब यहाँ ओइक नहीं लिख सकते, क्यों बेटा, क्योंकि तुमने इस कार्बन को चेन में काउंट नहीं किया। मेरी बात समझ में आई? इनके लिए स्पेशल सफिक्स है, तो इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स बेटा? So carboxylic acid. अब ऐसे कई सारे हैं, तो मैं सबकी एक लिस्ट यहाँ पर दे देता हूँ तुमको। जैसे COH के लिए स्पेशल अगर आता है तो उसको बोलते The last एक मिनट, मैं पहले लिख लूं फिर मैं दिखाता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद CONH2 एक बड़ा पॉपुलर है, कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। देन COCl, कार्बोनिल क्लोराइड। देन यू हैव COOR, इसको एस्टर बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं कार्बो। CN दिया हो अगर तो इसको बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। ये स्पेशल सफिक्सेस है बेटा। हाँ, फोर्थ वन और CHO कार्बल्डिहाइड। एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो बेटा, कोई कोई अगर समझ पाया तुरंत बोल दे दूसरे को। So CN cyanide भी होगा ना? नहीं, जो लिखा है वही फॉलो कर। So carbonitrile है वो. यस बेटा, ये स्पेशल सफिक्सेस है। अब इनको कहीं और से रिलेट नहीं करना, हो सकता है मैच करता हो किसी और चीज से भी, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें यही फॉलो करना है यहाँ पर। So what is COR called? कार्बोक्सिलेट एस्टर है वो। Sir, can you please show the previous page one? पहले ये कॉपी कर लिया बेटा। Sir, एक second. इस शीट पे वापस नहीं आऊंगा बेटा, इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे पास शीट्स कम है। So what is CN? कार्बोनाइट्राइल बेटा। Sir, हम्म, so the second one is CO, right? CONH2, ये NH2, CONH2, परफेक्ट। सो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में किया वही सेम केस ले अगर, लेकिन दोनों जगह पे अगर क्लोरीन और अल्कोहल डाल दिया और एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रखा तो भी वैसे ही करेंगे हम। सर लास्ट वाला का क्या लिखा आपने? कार्बोलाइड, कार्बल्डिहाइड। नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो आइडेंटिकल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से तो नहीं होगा बेटा, आइडेंटिकल होने चाहिए तीन। आइडेंटिकल होना चाहिए ना। गॉट डन बेटा, हटा दें इसको। इट। यस सर। ये वाला स्लाइड का कॉपी कर लो अगर कुछ चाहिए। ये हो चुका है क्या? सर वन सर। डन। यस सर। Have you copied this part also? Sir, wait please. सर प्रीवियस स्लाइड में उस एग्जांपल बोला। Yes. डन सर। Done. Should I remove this? सर Now तो I'm writing. जब भी हम अगर अल्कोहल का अगर ग्रुप लिखेंगे तो हमेशा O से कनेक्ट होगा ना बॉन्ड, H से नहीं होगा। हाँ। ओके। Sir, for COOR it was carboxylate. Yes, LAT. madam. Yes. Okay. So I'm writing here few questions. You attempt on.
I'm writing other questions, huh? I'm giving you some bond line structures, huh, for IUPAC nomenclature. Now you attempt these questions.